اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اگر آپ کے گھر میں مصیبت ہے کسی قسم کی، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے کسی بھی قسم کا، جیسے اب یہ پینڈیمک میں وبا ہے پازیٹیو 19 والی، کووڈ-19 کی، کرونا ہے، اور آپ کے گھر میں جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا رہے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر دے رہے، اور پھر پریشانی کی پریشانی ہے اور کوئی فوت ہو گیا، تو اس کے عوض، اس کے بجائے، اس کے بدل آپ کو کرنا کیا ہے؟ میں وہ تاریخ دے رہا ہوں آپ کو جو اسلام نے ہم کو دہرانے کے لیے دی۔ آپ کو صرف اور صرف ولی اللہ کا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ معاف کرنا، بعض ولی اللہ سے بھی بیر کرنے والے شیطان ہیں مسلمانوں میں، کیونکہ ایک دفعہ ایک مسلمان خاتون میرے کو کامنٹ کر کے بولی کہ وہ جو آپ بتا رہے ہیں یہاں پر ایک ولی اللہ کی درگاہ ہے فیلاڈیلفیا میں، وہ درگاہ نیو یارک کے ایریے میں نہیں آتی، اور وہ جو بزرگ ہے ان کے در پہ جانا نعوذ باللہ شرک بدعت کفر ہے۔ میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن اس کو میں ہمارے حیدرآباد کی لینگویج میں کہوں گا تو دھیڑنی ہے، کیونکہ ولی اللہ نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی، میں عشق ولی کا عاشق ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، میں صرف ولی اللہ کی محبت بتا رہا ہوں۔ اللہ کے وہ دوست ہوتے ہیں، اللہ نے صرف ولی کو اپنا دوست بنایا، اس واسطے ولی کہتے ہیں ہم، اس کو دوست بنایا۔ یہاں شرک بدعت کفر کا کوئی بھی تھوڑا بھی حصہ نہیں ہے، کوئی بھی مقام نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حبیب الدین رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے درجے کے ولی اللہ تھے۔ آپ سود کا بیپار کرتے تھے۔ جب دل میں اسلام داخل ہو گیا تو آپ نے دنیا کو باہر کیا، سود کا بیپار چھوڑ دیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں آپ کی قربانی کا۔ آپ سود کا بیپار کر رہے اور جو ہے راستے سے گزر رہے، چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے، کھیل لیتے ہوئے ان لوگوں نے آپ پر حبیب الدین رحمۃ اللہ علیہ پہ کامنٹ کیا، کہا کہ سود خور جا رہا۔ دل میں گھر کر گئی، ضمیر ان کا ملامت کیا۔ آپ نے کہا اللہ میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں، بچے بھی میرے کو تھوک رہے۔ واپس لوٹے، بچے وہیں کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا ایک جنتی جا رہا، ڈکلیئر کر دیا معصوم بچوں نے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں منادی کرانے کے۔ تو یہ ولی اللہ حبیب الدین ولی اللہ ایک بار جا رہے تھے اپنے کچھ کام سے، ایک بیچ میں ایک آدمی مصیبت زدہ مل گیا اور اس نے کہا کہ حبیب الدین رحمت اللہ علیہ میرے گھر میں ایک بیمار ہے۔ آپ نے کہا جیب سے پیسے نکالو اور فوراً خیرات کر دو۔ تو میں میرے مسلمان، تمہارے گھر میں مصیبت ہے یا تمہارے گھر میں بیمار ہے، ہم حیدرآباد میں، کیونکہ ہمارا حیدرآباد ایک واحد انڈیا میں ایسا ہے جو ہندو کے پاس بھی ایک قسم کا راج نہیں تھا، ہم 7 پیڑھی ہم مسلمان حکومت کرے۔ حیدر کے نام سے حیدرآباد ہے، یہی وہ حیدر ہے عثمان علی بادشاہ کے والدین میں سے 7 پشت ان کی جو ہے 7 ٹومس ہے حیدرآباد میں، یہ حکومت کرے۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا مسلمانوں کو انڈیا میں۔ دوسرا مغل حکومت کرے 7 پیڑھی، یہ اعزاز دیا مسلمانوں کو۔ ہندو کے پاس نہیں ملے گی ایسی تاریخ کوئی، ہندو کے پاس زمزم بھی نہیں ملے گا، ہندو کے پاس گنگا گندی میلی ملے گی۔ ایک حقیقت دے رہا ہوں، مسلمان کو اللہ نے آج پھر سے پیٹرول کی دولت دی، آپ کو خطر ملے گا دولت سے بھرا ہوا، دبئی ملے گا دولت کی انبار لگی ہوئی، سعودی ملے گا
दौलत को अल्लाह ने बिछा दिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे, क़यामत से पहले सोना उगलेगी ये ज़मीन, और ये हक़ हो गया। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद ऐसी हस्ती है जो आसमानों में जाके वापिस आए। ये आपके टेक्नोलॉजी को मात दे दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को मात दे दिया, ये कंप्यूटर को भी मात दे दिया, क्योंकि दुनिया में कंप्यूटर पर सेकंड में बात फैल जाती है, वर्ल्ड वाइड पहुंच जाती है। जिसको क्लिक करके देखना होता है उसको, अगर मैं अमेरिका में वीडियो बना रहा हूं न्यूयॉर्क में आज, तो कल इंडिया में सेकंड्स में देख सकता है, पाकिस्तान में देख सकता है, जब का जब देख सकता है। एक लम्हे की भी यानी वो देरी नहीं होगी, आन की आन देख सकता है। तो अल्लाह के इस दीन में बहुत ताकत है, बहुत कुछ है अल्लाह के दीन में। मैं चैलेंज दे सकता हूं, आपके घर के सारी बलाएं चले जाएंगी, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप कमजोर ईमान के हैं तो आप डॉक्टर रख लो, लेकिन एक बकरा खैरात कर दो। जैसे अभी मेरे साले को बीमारी हुई, मेरे दूसरे साले ने फौरन जो है एक बकरे की कुर्बानी दी अल्लाह के जो है रास्ते में। वो कहा कि मेरे भाई की शिफा हो जाए, ये एक बड़ी निशानी थी। दूसरी और एक साले ने मेरे जो है उनकी हैसियत के हिसाब से गरीबों को ले जाके नामपल्ली के जो है वहाँ पर खाना खिलाया गरीबों को, ये दूसरी थी। तीसरी साले ने जो है अपने बेटे को कहा, हिफ्ज करने वाले को कहा कि तू कुरान पढ़ के सामने तेरे चाचा को रख के दुआ कर, अल्लाह तेरी जो है दुआ कबूल कर लेगा और जरूर मेरे भाई को शिफा मिलेगी। ये तीसरा है। चौथा उसका भाई, क्योंकि वो 5 भाई है, इस वास्ते एक चौथे भाई ने दरगाहों पे वली अल्लाह की अपनी अहलिया के साथ गया और 2 दरगाहों पर मांगा। दरगाहों की हकीकत मैंने समझने वाले को खोल देता हूं, सुन। मेरे ससुरे एक वली अल्लाह जिक्र करते थे ओल्ड सिटी में, उनकी बेटी की जॉब की जरूरत थी वरंगल में, हैदराबाद में रहते हैं मेरे ससुरे। जब इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको नसीब करे, वली अल्लाह थे, ईमान वाले थे। अपनी बेटी को जो है जॉब मिलना वरंगल में, क्योंकि मेरे अब्बा महबूबिया कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज के बानियों में से वरंगल के, तो वो स्कूल में टीचर की जॉब थी। मेरी बाद में साली प्रिंसिपल होके रिटायर्ड हुए। तो वो दरगाह वली अल्लाह जहाँ जिक्र कर रहे थे उनके पास गया और मेरे ससुरे ने कहा कि मेरी बेटी को मैं जॉब के लिए वरंगल ले जा रहा हूँ, मंडी बाजार में महबूबिया कॉलेज है, वहाँ जॉब मिल जाए। पलट के ने देखा और जाके देखा वहाँ पर इंटरव्यू के जगह अंडरलाइन किया हुआ था नाम, सेलेक्ट किए उसमें। यानी अल्लाह ताला ने वली की ज़बान में वो ताकत रख दी कि जो है वो बैठे बैठे अपनी जगह से जो है इंसान को जॉब दिला सकता है। मेरे ससुरे के वालिद यानी दादा, उनकी बेगम चिराग बुझाने जा रहे थे मगरिब के वक्त। उनके दादा हमारे ससुरे के वालिद ने कहा, बेगम तुम चिराग बुझाने जा रहे, बैठो मैं चिराग बुझा देता हूं। जहां बैठे हुए थे वहीं से चिराग बुझाया दूसरे कमरे का। मेरे ससुरे एक नामपल्ली की दरगाह के अंदर एक बुजुर्ग थे मुर्शिद, उनके बहुत चहीते दोस्त थे। उन्होंने कहा क्या बात करें मियाँ, हमारे मियाँ बहुत बोलते थे हमारे ससुरे, लफ्ज उनका मियाँ तकिया कलाम जैसा था। क्या बात करें मियाँ, ऐसा बोले तो लाइट आ जाना। लाइट गई हुई थी, लाइट आ गई। ये सारे बातें अपनी जगह है। मेरे पास जगझांप रहमतुल्लाह अलैह वली अल्लाह अपने हैदराबाद में, शिवाजी आना चाह रहा था दक्कन पे कूच करने के लिए, फतह के लिए, इल्गार करने के लिए। उन्होंने खाली अपने मुर्गियों को झांप में बंद कर दिया और कहा कि शिवाजी को आने दो, देखते हैं। मेरे मुर्गियों की तो मैंने हिफाजत कर ली, बच्चों की हिफाजत कर ली। सारा जो है चप्पा चप्पा फिरा, लेकिन दक्कन का रास्ता नहीं मिला। वो ऐसा गुमराह हो गया, राह में भटक गया। ये है अल्लाह के ईमान वालों की बातें। सिर्फ तुमको करना यह है कि तुमको फौरन गरीबों को खाना खिला देना है, फौरन बकरे की कुर्बानी कर देनी, फौरन तुमको जो है कुछ ना कुछ पैसा अल्लाह के रास्ते में, यतीम खानों में या जहां भी तुमको दिल करे वहां दे देना है। ये पेंडेमिक टाइम है,
1000 अमेरिका में लोग मर गए। गौर करो, कल नया रिकॉर्ड है, इससे बड़ा रिकॉर्ड अब तक नहीं आया। 4000 मर गए। लेकिन हो क्या रहा है? यहां का डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहा, मेरे जो है इलेक्शन में मुर्दे लोग भी जो है वोट डाले जैसा बता रहा। ये शैतानी है। यहां आपको देखना है कि फलस्तीन पे इजराइल हमला कर दिया, ये शैतानी है कल की बात। आप ये देखना है कि जो है यमन 3 लाख लोग, 30 लाख 3 मिलियन भूख से मर जा रही। आप देख रहे ईरान पैसा खर्च कर रहा दुश्मन के लिए, सऊदी से लड़ने। सऊदी दुश्मन से लड़ने के लिए दुनिया के यमन के पैसा खर्च कर रहा। ये मुसलमान है आज का, ईमान खत्म हो गया। मैं जगाने के लिए बता रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। अगर कोई मुसलमान इंडिया के अंदर, मैं चैलेंज दे रहा हूं फिर से, अगर से तुम ये वबा कोविड-19 की निकालना है तो बस अपने अपने शहर, अपने अपने महल्ले में, अपने अपने स्टेट में ऐसा तरीका शुरू कर दो, चिराग जला दो, रोशनी कर दो। हर वो हिंदुस्तान में जिक्र से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की दस्तरखान महफिल बना लो। चैलेंज दे रहा हूं, मैं 10 साल से ये कह रहा हूं कि अल्लाह कामयाबी देता है ये वजीफे में। जो वजीफा 1,24,25 हज़ार का करेगा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दरूद के साथ, और दुआ करेगा, पूरे इंडिया में करो, पूरे आलम से तुम ये कोविड-19 निकाल सकते हैं। मैं अल्लाह के ऊपर शाकिर होके कह रहा हूं, ईमान रख कर कह रहा हूं। मैं दुआ नहीं करता ये कोविड-19 चले जाए बोल के, इस वास्ते कि क़यामत है। मैं दुआ नहीं करता कि मुसलमान भी बिगड़ा हुआ है, क़यामत है। मैं दुआ नहीं करता मुसलमान का कुरान पे यकीन नहीं है, क़यामत है। मैं दुआ यकीन नहीं करता क्योंकि अमाल हमारे पामाल हो गए, अच्छे से अच्छा बिगड़ गया। मैं जैसा गुनहगार भी जो है, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन मेरा ईमान है कि तुम अगर से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का जिक्र तुम्हारे मोहल्लों में शुरू कर दो, गरीबों को खाना खिलाओ और पैसा बांटो और जो खैरात करो, और तुम्हारे घरों से पूरी बीमारियों के ये अजाब को हटा दो। फिर उसके बाद तुमको ना क्रिश्चियन यकीन से कहेगा कि ये सच है, ना हिंदू कहेगा, क्योंकि वो उनके गले में तौक है। अल्लाहु अकबर।